Hello students, I am Vishal from English Academy. Today we'll discuss a chapter of class 9th, The Road Not Taken. So first of all we are going to talk about author. The author of this poem is Robert Lee Frost. He was born 26 March 1874 and he was died on 29 January 1963. He was an American poet. He is known for his realistic depiction of rural life and his command of American colloquial speech. He frequently wrote about settings from rural life in New England in the early 20th century. So now students, try to understand the meaning of these sentences. That रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट का जन्म जो था 26 मार्च 1874 को हुआ था और इनकी मृत्यु 29 जनवरी 1963 को हुआ था। वह एक अमेरिकी पोएट थे। उन्होंने ग्रामीण जीवन के लिए उनके यथार्थवादी वर्णन और अमेरिकी बोलचाल के भाषण के लिए जाना जाता है। उन्होंने अक्सर 20वीं शताब्दी की शुरुआत में न्यू इंग्लैंड में ग्रामीण जीवन की व्यवस्था के बारे में लिखा था। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएट रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पोएम, The Road Not Taken. Before that, I want to tell you the meaning of this title, The Road Not Taken. जो रास्ता नहीं चुना या नहीं लिया. So now, ready for the introduction of this poem. So in the poem, The Road Not Taken, the road symbolizes our life. The poet says that the path that we don't choose in our life is, he described his feeling about that choice that he had left in the past. The path which we have chosen decides our future, our destination. The important message that the poet wants to give is that the choice that we make has an impact on our future, and if we make a wrong choice we regret it but cannot go back on it. So we must be wise while making choice which will help to make our career, to make our life better. So this is all about the introduction about the poem. Try to understand in Hindi the meaning of this introduction. So students, कविता में द रोड नॉट टेकन, सड़क हमारे जीवन का प्रतीक है. कवि कहता है कि हम अपने जीवन में जो रास्ता नहीं चुनते हैं या फिर हम लोग वह उस विकल्प के बारे में अपनी भावनाओं का वर्णन करता है जिसे उसने अतीत में छोड़ा था. इसका मतलब कवि जो है इस पोएम के माध्यम से बताना चाहता है कि वह अपने उस इमोशंस के बारे में एक्सप्लेन करना चाहता है जो एक बार उसने अपने लाइफ में डिसीजन लेना था और उसने एक डिसीजन लिया जिसमें उसे 2 रास्तों पे चलना था, जो कि जंगल में जाने के बाद में वह 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे, जहां उसे डिसाइड करना था कि कौन सा सड़क मेरे लिए बेहतर होगा. तो आगे हम बात करते हैं उसके बारे में. वह उस विकल्प के बारे में अपनी भावनाओं का वर्णन करता है जिसे उसने अतीत में छोड़ा था. जो रास्ता हमने चुना है वह हमारा भविष्य, हमारी मंजिल तय करता है.
कवि जो महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता है वह यह है कि जो चुनाव हम करते हैं उसका हमारे भविष्य पर प्रभाव पड़ता है। यदि हम गलत चुनाव करते हैं तो हमें इसका पछतावा होता है, लेकिन हम उस पर पीछे नहीं हट सकते। इसलिए हमें चुनाव करते समय समझदार होना चाहिए, जो कि हमारे जीवन के लिए, हमारे सफलता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें जब भी कोई डिसीजन लेना हो तो सोच समझ के परफेक्ट मायनर में अपने तरीके से डिसाइड करना चाहिए कि हमारे लिए कौन सा रास्ता सही होगा और कौन सा नहीं। सो स्टूडेंट्स, यह अब तक कविता का परिचय है। नाउ वी आर गोइंग टू नो द समरी ऑफ दिस स्टोरी। सो स्टार्ट नाउ। द पोएट सेज दैट once he was walking down the road and reached a fork. He could walk over one of the paths only. He took time to choose the right path. He inspected them to decide which was a better option and then chose the one which seemed less walked over. He kept the other one for some other day, although he knew that he would never get the chance to walk over it. He would go further on the chosen path and not get a chance to go back on it. As he walked on the chosen path, he realized that both the paths were similar. He felt that his future depended on the choice that he made. Already we have to discuss about this statement in the introduction. So once again, we are going to try to understand the meaning of this summary. That so students, कवि कहता है कि एक बार वह सड़क के नीचे एक जंगल के माध्यम से चल रहा था और उस जंगल में लगातार जाने के बाद वह जो है कुछ समय लगातार चला, तो उस जंगल पे जाने के बाद में उसे वही एक सड़क दो पार्ट में बटा हुआ दिखाई दिया, दो भाग में डिवाइड हुआ उसे दिखा। वह केवल एक मार्ग पर चल सकता था। इसका मतलब कि वह जो यात्रा पे चल रहा था तो वह अकेला व्यक्ति था और अचानक से वह सिंगल रास्ता दो रास्तों में बट गया था, जिसके कारण वह एक ही सिंगल यात्री होने के कारण दो रास्तों पे नहीं चल सकता था। इसलिए उसे अब वह डिसाइड करना था कि वह कौन से रास्ते पे चले और कौन सा रास्ता उसके लिए बेहतर होगा। उन्हें सही रास्ता चुनने में समय लगा। उसने वहीं उस रास्ते पे खड़े होकर सोचने लगा उसने कि मुझे कौन से रास्ते पे चलना चाहिए, और उसके बाद उन्होंने यह तय करने के लिए निरीक्षण किया कि कौन सा रास्ता बेहतर विकल्प है, और फिर वही चुना जो वह कम चला था। फिर उसने डिसाइड किया मुझे उस रास्ते पे चलना चाहिए जिस पे लोगों का कम चलना हुआ है। उसने दूसरे को किसी और दिन के लिए रखा और उसने दूसरे रास्ते को डिसाइड किया कि मैं पुनः दोबारा जब वापस आऊँगा तो फिर इस रास्ते पे चलूँगा, आज मैं इस रास्ते पे नहीं जाऊँगा। हालांकि वह जानता था कि उसे इस पर चलने का मौका कभी नहीं मिलेगा। इसका मतलब कवि को इस बात की जानकारी थी कि वह दोबारा लौट के आने वाला नहीं है। फिर भी उसने अपने आप से डिसाइड किया कि बाय द वे अगर मैं कभी दोबारा वापस आया तो दूसरे रास्ते पे नेक्स्ट टाइम चलूँगा। फ़िलहाल मैं उस फर्स्ट रास्ते पे चलने जा रहा हूँ जिस पे लोगों का आवागमन
लोगों का चलना बहुत कम हुआ है। वह चुने हुए रास्ते पर और आगे बढ़ेगा और उसे वापस जाने का मौका नहीं मिलेगा। जब वह चुने हुए रास्ते पर चला तो उसे महसूस किया कि दोनों रास्ते समान थे। जब कुछ समय आगे चला तो उसने फील किया कि दोनों जो रास्ते हैं वो सिमिलर है, एक समान है। उसने महसूस किया कि उसका भविष्य उस पसंद पर निर्भर था जो उसने बनाया था। आगे लास्ट में स्टेटमेंट जो है कवि यही देना चाहता है कि हम जो कुछ भी डिसाइड करते हैं, निर्णय करते हैं अपने करियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, तो हमें अगर हम उस चीज़ को अच्छे से फील करके, उस चीज़ को अच्छे तरीके से निरीक्षण करके, अच्छे तरीके से उसको हम जो है इंस्पेक्शन करके अगर हम नहीं डिसाइड करते हैं तो हमारा चूज किया हुआ रास्ता, डिसीजन राइट भी जा सकता है और रॉन्ग भी जा सकता है। अगर हम किसी चीज़ पे एनालिसिस करके हम उसका डिसीजन लेते हैं तो 100% हम बेहतर करेंगे और बेहतर हो सकता है। तो ये हमें पोएम इंस्पायर करता है, हमें एक लेसन देता है कि हमें अपने लाइफ में राइट डिसीजन लेना चाहिए, सोच समझ के लेना चाहिए ताकि हम अपने लाइफ में बेहतर कर सकें। सो स्टूडेंट्स, this is all about this poem, The Road Not Taken. I hope so you all enjoyed this video. Thank you to all of you.